Yes, good afternoon, Amarveer. Good afternoon. So next we will look at the next chapter, that is the basics of Python's brief overview of Python. So let us wait for a couple of minutes for the others to join in. Clear? So we'll start with the first question. So first question is, which of the following is the identifier names are valid, and why few are invalid and why they are invalid? Clear? So first start with the Amarveer. Yes, first. Before we go into the answers, Amarveer, just explain what is the identifier. What is identifier? Sir, identifier is the name which is given to identify a variable in Python or any other programming language. For example, if we are giving a value x is equal to 5, then that assignment of name to x before that equal to is an identifier. Yes. And can you explain a bit on what are the basic rules for naming a variable? Sir, there should be no spaces in that. Yes. Only underscore can be used, and numbers from 0 to 9 and alphabets, uppercase and lowercase both. And an identifier should not contain a keyword. Yes. So yes, good one. So yes, we start with the first one is A, that is whether this is valid or invalid. It is invalid because at the end there is a period, full stop, and we Yes. cannot include a full stop in a identifier name. Because this is a special character. So no special character other than the underscore is allowed. So then we have the second is B. So B, answer the B also. It is an identifier name because it contains only numbers, which is 1, alphabets, uppercase and lowercase, and an underscore. So this is a valid or invalid? It is valid.
It is valid. According to Amarveer, this is valid. Yes. Gurleen Singh. So valid, sir. Valid. Next, we have Jasmine Kaur. Yes, Mehak. Sir, it is invalid as the keyword identifier name cannot start with a number. Yes, yes. So there is one more rule is there, that is the identifier should not start with a number. So this is a identifier which is starting with a number. So this is also falls under the category of invalid. Yes, C. Yes, C. Yes, Mehak, आप explain करो C1. Sir, C is also invalid because it contains special character. Yes, $sign is a special character. Then D, also answer the D also. Sir, D is also invalid because it contains views in between. Then move to the E. Sir, E is valid one. E is valid one. F. F is not valid because it contains special character. Yes, yes. And Hyphen. Hyphen is not allowed. G, also answer the G. G is valid and H is not valid because it is a keyword. Yes, valid. So now we move out of this identifiers. We move to the question number 2. So yes, Manoj Sharma has joined in. So we will give him a gift of question number 2. Yes, Manat, you take charge of question number 2. Yes, sir. पढ़ो क्या है? Write the corresponding Python assignment statements. First, assign 10 to variable length and 20 to variable breadth. तो क्या करना है इसमें? Assign करना है assignment statement. Simple है, मतलब कि करना क्या है इसमें? Let's say we move to the this Jupyter notebook. ठीक है? एक वेरिएबल लेना है पहले लेंथ and assign it to 10 and another variable breadth and assign a value to 20. Yes. Next, B part. Just wait. Yes. Move to the B part. Assign the average of values of variable length and breadth to a variable sum. तो क्या करोगे? Input करेंगे value. Input हो गया है बेटा. Input नहीं है, ये तो assign बोल रहा है. This is saying assign the average of values of the variables length and breadth to a variable sum. तो इसमें क्या करना है? That is कैसे हम average calculate करेंगे? That is this is sum is equal to that is length plus breadth and divided by 2. That is how you calculate the average. ठीक है? So let us move to the next question. Yes, next is third question. C part. Yes, Mannat. Yes, Mehak, आप पढ़ो Mehak. Assign a list containing strings, paper, gel pen, and eraser to a variable stationery. तो क्या करना है इसमें? So stationery को assign करनी है एक list जिसमें paper, gel pen और eraser elements हों. तो एक लिस्ट बनानी है हमने, ठीक है? So like we have to use a variable stationery and create a list with whatever has been demanded. ठीक है? So let us say pen, pencil, and eraser is demanded like that.
ठीक है, now we move to the D question. हाँ, yes महक आप ही पढ़ो. Assign the strings Mohandas, Karamchand and Gandhi to variables first, second and last. तो क्या करना सर पड़ेगा इनमें सर? वेरिएबल्स को ये वैल्यू स्ट्रिंग्स असाइन करनी है, इनके नाम असाइन करने हैं. ठीक है. Move to the next question. E. Assign the concatenated values of strings variables first, middle and last to variable full name. Make sure to incorporate blank spaces appropriately between different parts of names. बता सकते हो इसके लिए? सर इसमें इनको जो ये मोहनचंद, करमचंद, गांधी, इनको एक वैल्यू ये फुल नेम को असाइन कर देना है प्लस साइन लगा के कंकैटिनेट करके. Yes. Good one. Good. So I will just show the D and E, both how the D and E have been solved. They are quite easy, just to revise. ठीक है. This is first part में क्या था कि फर्स्ट वेरिएबल को मोहनदास असाइन करना है, सेकंड को मिडिल वेरिएबल को करमचंद असाइन करना है एंड थर्ड वेरिएबल को गांधी असाइन करना है. फिर एक और वेरिएबल लेना है फुल नेम, तो जिनसे क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों को कंकैटिनेट करना है विद द फुल नेम के अंदर. तो एक इसने ये ई क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि इनके बीच में स्पेस आनी चाहिए. तो ये कि फर्स्ट के बाद आप एक स्पेस छोड़ दो, फिर करमचंद के बाद एक स्पेस छोड़ दो, फिर गांधी में तो कोई स्पेस चाहिए नहीं. सो लाइक मोहनदास, then space, then Karamchand, then Gandhi, and this how this will be displayed over there. Clear? So not a difficult scenario. Clear है महक? Yes. Yes sir. Yes Gurleen. Yes अजय प्रताप, क्लियर है ये क्वेश्चन? सर मैं अभी आया, मैंने क्वेश्चन पूरा देखा नहीं. लेट एंट्री करते हो हमेशा तुम. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन इज थोड़ी आपकी क्लैरिटी के लिए. डी एंड ई थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है. क्या है इसमें? असाइन दी स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट. तो फर्स्ट को मोहनदास असाइन करना है, मिडल को करमचंद असाइन करना है, लास्ट को गांधी असाइन करना है. देन हमने क्या करना है? असाइन दी कंकैटिनेटेड वैल्यूज ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल. ये जो तीन स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं इनको कंकैटिनेट करना है. क्लियर? टू ए वेरिएबल फुल नेम. फुल नेम के साथ इसको कंकैटिनेट करना है. एंड मेक श्योर दैट टू इनकॉर्पोरेट द ब्लैंक स्पेसेस एप्रोप्रिएटली बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम्स. ठीक है? जैसे मोहनदास के बाद फिर एक स्पेस आए बिफोर करमचंद, और फिर करमचंद के बाद फिर से एक स्पेस आए. और कंकैटिनेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम? हाउ वी कंकैटिनेट दी स्ट्रिंग्स इन पाइथन? यस वंशिका. प्लस symbol is basically used to concatenate the variables. Now we move to the third question. Yes Gurleen आप पढ़ो third question. Which data type will be used to represent the following data values and why? Number of months in a year. तो क्या होना चाहिए? Number of months सर, फिर इसमें सर इंटीजर आएगा सर. ठीक है. नंबर नंबर. तो उसके बाद मोबाइल नंबर सर सेम फर्स्ट जैसा ही. नहीं, मोबाइल नंबर पे ना जाओ, पहले दूसरा बी पार्ट पढ़ो. बी. सॉरी. रेजिडेंस ऑफ दिल्ली और नॉट. यस और नो. तो सर इसमें बूलियन आ जाएगा. बूलियन सर, बूलियन आ जाएगा सर डाटा टाइप. अच्छा, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट. ठीक है. यस और नो. हाँ जी सर. तो उसके बाद मोबाइल नंबर का सेम एज फर्स्ट आएगा सर, ए जैसा. मोबाइल नंबर शुड बी नंबर टाइप. Yes, why not string type? मर्जी है आपकी, फिर उसको इंक्लोज करना पड़ेगा. चलो ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट वन. सर फिर पॉकेट मनी सर, हम इसको फिर से नंबर टाइप रखेंगे. नंबर टाइप रखेंगे. इसमें हमें ऐड भी करना पड़ता है, ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. ठीक. चलिए ठीक. और सर फिर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. तो इसमें सर अगर सर क्या कहते हैं
तो इसमें भी इंटीजर रखेंगे। इंटीजर तो क्यों, इसको अगर फ्लो हमें फ्लो कोई टाइप फॉर्म- रखो, व्हाई हर किसी की इंटीजर यूज करिए। वॉल्यूम कैन बी इन फ्रैक्शंस आल्सो, सो यूज द फ्लो टाइप। ठीक है सर, फ्लोट रखेंगे। फिर सर पेरीमीटर का भी सेम ही फिर फ्लोट रखेंगे सर। ठीक है जी। फिर नेम नेम ऑफ ऑफ द स्टूडेंट सर इसमें स्ट्रिंग रखेंगे सर। नेम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी स्ट्रिंग, एंड व्हाई शुड इट बी स्ट्रिंग? सर स्ट्रिंग क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हमें ज्यादा करने पड़ेंगे, और जैसे नंबर में हम सर नंबर यूज करते हैं ना, तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेम में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? चेंज तो हमें कभी भी करना पड़ सकता है, चेंज इज नॉट द रीजन। सो हाँ जी सर। basically इसमें कैलकुलेशन नहीं है, स्ट्रिंग, बिकॉज नेम शुड बी स्ट्रिंग बिकॉज वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन ओवर देयर, सो इट इज अ स्ट्रिंग। And similarly, the last one is the address of the student. It should be also of string type. Clear? स्ट्रिंग। Now we move to the question number 4. So we'll pick up. हर बार हम ऊपर वाले स्टूडेंट्स। यस, अजय प्रताप से स्टार्ट। अजय प्रताप, आप कंफर्टेबल हो? यस सर। So fourth question, first part. पहले शुरू से पढ़ लो क्या है। Give the output of the following when num1 is equal to 4, num2 is equal to 3 and num3 is equal to 2. So first A part. A num सर आंसर बताना है आप? हाँ बता दो, हाँ सीधा आंसर बता दो, आंसर बता सकते हो। सर आंसर शायद 5 है। 5 आएगा। यस, और किसी की हेल्प ले लेते हैं। We move to the नहीं सर वो हाँ 9 कोई आएगा बात, सर आंसर। फिर से बता दो, कोई बात नहीं। मेक ए सेकंड ट्राई। यस, 5 आएगा तो ये भी बता दो 5 कैसे आएगा। 5 सर वो गलती से 9 हाँ चलो आएगा। कोई बात नहीं, रेक्टिफाई कर लो उसको। सर 9 है आंसर। 9 है। बेसिकली होता क्या है इसमें, num1 इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। तो तीनों की वैल्यू सम हो जाएगी, दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज गिवन बाय, दैट इज 9 विल बी द आंसर। यस, ये सी वाला जो पार्ट है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, सी पार्ट। आंसर की सर एक्सप्लेन करना है। हाँ बता दो, आंसर बता दो सीधा ही, फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। आंसर टफ है, आप एक्सप्लेन कर दो, आप एक्सप्लेन कर दो कैसे होगा ये। सर वो num2 प्लस num3 सर num1 की पावर हो जाएगी। हाँ तो num2 और num3 की वैल्यू है, दैट इज 3 प्लस 2 5, सो दिस विल बी 4 रेज टू पावर 5। तो ये 1024 आएगा इसका आंसर। सो वी नीड नॉट टू गो फॉर द आंसर। यस, फॉर द ई क्वेश्चन विल पिक अप समवन एल्स। यस श्रिया, आप बताओ नेक्स्ट ई पार्ट। Sir, it is num1 raised to power num2 plus c. Means num2 में हमारे पास 3 है, 3 plus c जो है वो num1 की पावर बन जाएगी। Means 4 power 3 plus c. ठीक है, ये पहले ये बताओ कि सी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? तो c की पावर हमें दी नहीं, c की वैल्यू नहीं दी हुई हमें। तो सी की वैल्यू नहीं देगी, दी हुई ना, सो दैट विल जनरेट द एरर। एक्सप्रेशन के अंदर अगर किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, सो दैट विल जनरेट द एरर। क्लियर? सो बिफोर सॉल्यूशन दिस विल यील्ड द एरर। इसको मैंने लगता है ये किया होगा यहाँ से, ये देखो ये है, दैट इज नम रेज टू पावर दैट इज इक्वल टू num2 plus c। तो c बेसिकली डिफाइंड नहीं है, सो दैट विल दिस विल गिव ए एरर। c इज नॉट डिफाइंड। सो नेक्स्ट वी मूव टू द f पार्ट। सो हु विल आंसर? यस, आप ही बताओ श्रिया, आप बताओ। Sir, num1 is equal to 5
in single quotes plus 5 in single quotes. This means that the result will be 55, 50 not 10. हाँ ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, सो 5 + 5 ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे आपस में, बीच में प्लस ऑपरेटर है, सो प्लस विल एक्ट एज ए कंकैटिनेशन, सो 5 + 5 द आंसर विल बी 55. Yes, for the next question, let us say yes, नीचे ये सारे स्विच ऑफ करके बैठे हैं कैमरा, तरुणजोत, नवदीप सिंह, स्टीफन, दिलबाग सिंह, रोमिका एंड अभिनंदन. किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ऑल आर इक्वल हियर. हाँ यस तरुणजोत, हाँ आप करो आंसर ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, एच पार्ट. यस रोमिका, कैमरा ऑन करो बेटा. रोमिका, दिलबाग सिंह, स्टीफन एंड अभिनंदन. हाँ जी हाँ जी. यस स्टीफन आप करो आंसर ये नेक्स्ट क्वेश्चन. वो कोई आंसर ही नहीं करता आप लोगों में से. यस एच क्वेश्चन, दिस इज द एच. कुछ भी बता दो आंसर. सॉल्व कैसे होगा ये? एंड चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यस अजय प्रताप. एच आंसर शायद 1 होगा. 1 ही है इसका आंसर. नेक्स्ट आई को बता सकते हो आई कैसे सॉल्व हुआ है? आई क्वेश्चन आंसर ना बताओ, हाउ इट इज सॉल्व्ड ये बता दो. सर इसका नहीं पता. टफ है ये. यस महक आप बताओ. महक हाँ हाउ इट विल बी सॉल्व्ड. हाँ सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई वाला. फिर वो ठीक. माइनस हो जाएगा 8 ठीक. से डिवाइड 10. यस. फिर वो बाकी बाहर ओ नहीं multiply होगा. ये जो 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये डिवाइड पहले हो जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई बाद में होगा. सर ये 10 देखो पूरे को है डिवाइड. नहीं देखो आपके सामने यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है. वो पहले 3 × 12 करके -8, फिर वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 प्लस होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा. नहीं ऐसा नहीं है. पहले सबसे पहले है 3 × 12 होगा, वो ठीक है आपका. फिर -8 होगा, ठीक है जी. फिर उसके बाद 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो इन दोनों का जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स है वो सेम है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर एट द सेम लेवल. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से एक्सप्रेशन सॉल्व होगा. पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो 10 से डिवाइड होगा, और फिर उसके अंदर लास्ट पे 2 प्लस होगा. बिकॉज प्लस की जो प्रायोरिटी है और प्रेसिडेंस है वो लेस है, दैट्स व्हाई 2 + 2 लास्ट पे हो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kth क्वेश्चन. यस इसका आंसर बता दो, आप ही बता दो. मैं सर इट विल बी 10.0. 10.0 फ्लोट में कन्वर्ट होगा. ठीक है. यस वंशिका नेक्स्ट. M. Sir, it will be 3.14. Num1 is equal to 3.14. सो ये थोड़ा आपके पास ना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन चला गया आपको. सो हाउ इट हैज बीन सॉल्व्ड, ये देखो यही क्वेश्चन है ये. num1 is equal to इंटीजर
सो बेसिकली इसको टाइप कास्ट किया हुआ, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की हुई। बट इसमें होता क्या है बेसिकली नो, इंटीजर जो फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन ये नंबर्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स के ऊपर काम करता है। और बिकॉज ये इसका आंसर गिवन है वैल्यू एरर क्यों है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर फंक्शन विद बेस 10। तो जो इंटीजर फंक्शन है वो न्यूमेरिक्स के ऊपर काम करता है, वेदर इट इज फ्लोट और या नंबर, कोई भी नंबर लिटरल के ऊपर काम करेगा। बट दिस इज नॉट ए नंबर लिटरल, दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल। तो नंबर लिटरल जो होते हैं इंटीजर, वो बेस 10 का मतलब क्या होता है, दैट इज जो हमारे पास नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 का मतलब क्या होता है, जहां पे बेस 10 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जहां पे बेस 2 है वो हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम है, दैट इज बुलियन नंबर सिस्टम। जहां पे बेस 8 है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो 10 इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम काम करते हैं 1 से लेके 10 तक जो नंबर सिस्टम है, 0 to 9। सो क्लियर है बेटा आंसर? यस सर। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चन को चेक भी करके देख लेना, रन भी करके देख लेना, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर O and P। सो O and P विल बी गिवन टू, यस अभी तक, यस मुस्कान आप करो सॉल्व, मुस्कान। कॉपी पेन रख लिया करो अपने पास, दैट्स अ गुड हैबिट, दैट इफ यू हैव कॉपी एंड पेन विद। यस महक, पता लग गया क्वेश्चन का? यस सर। करो इसको सॉल्व, क्या आएगा, कैसे सॉल्व होगा ये? सर इसका आंसर ट्रू आएगा। और नहीं महक को थोड़ी दिया था मैंने ये क्वेश्चन, पहले किसका नाम, मुस्कान का नाम बोला था मेरे को लगता है पहले। ठीक है, चलो आप एक्सप्लेन भी कर दो बेटा, महक आप ही एक्सप्लेन कर दो, क्या कैसे आएगा इसका आंसर, ट्रू कैसे आएगा? सर पहले बोला है 10 इज नॉट इक्वल टू 9, तो वो ट्रू आ जाएगा। एंड 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, वो भी ट्रू आएगा। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। यस यस गुड गुड। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज P। यस मुस्कान आप करो बेटा सॉल्व इसको। नेक्स्ट मुस्कान 11F। और वैसे आप इन क्वेश्चंस को आप जुपिटर के ऊपर भी रन करके चेक कर सकते हो साथ साथ। इसका आंसर फॉल्स आएगा? हाँ जी फॉल्स आएगा इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, कैसे आएगा अब थोड़ा सा ये भी बता दो कि इस एक्सप्रेशन को ये सॉल्व कैसे होगा। सर जो फर्स्ट है 5 मॉड्यूल 10 प्लस 10, उसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 50। ट्रू। एंड 29 इज इक्वल टू, हाँ करो एक्सप्लेन। जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका आंसर आएगा 20.5। हाँ और ग्रेटर देन 50 है। एंड 29 इक्वल, उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, और जो सेकंड है उसका ट्रू है। एंड फॉल्स एंड ट्रू है दोनों, मतलब कि फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू फॉल्स होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले दैट वी नीड टू लुक एट, जैसे ये है हमारे पास दैट इज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हर एक ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पे फॉल कर रहा है ऑपरेटर। क्लियर? सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 5 परसेंटेज 10, तो परसेंटेज ऑपरेटर है हमारे पास, रिमाइंडर ऑपरेटर है हमारे पास। क्लियर? और इसकी
प्लस से बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट ही ये सॉल्व होगा, पहले एक प्लस है फिर एक लेस देन वाला सिंबल है। तो इफ यू लुक एट दी ऑपरेटर्स, तो ये देखो आप कि जो परसेंटेज है उसकी प्रायोरिटी जा रहा है, उसके बाद प्लस और माइनस की प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन नंबर ऑपरेटर आते हैं, और फिर लास्ट पे एंड और नॉट आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लास्ट पे। तो ये आपको ये प्रायोरिटी शुड बी क्लियर। और एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व होता है लेफ्ट टू राइट। तो पहले 5% 10, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, इसका 5 रिमाइंडर आ जाएगा 10 से डिवाइड होने के बाद। ठीक है, 5 + 10 हमारे पास 15 आ जाएगा, 15 से 50 क्या बड़ा है, सो इट्स आंसर विल बी ट्रू, एंड राइट हैंड साइड इट्स आंसर विल बी आल्सो ट्रू, क्लियर, एंड true, and you will find the answer as true. So we can solve this on the Jupyter notebook also. ठीक है, so you can see here at this 13 number this expression has been solved and its answer is true. ठीक है, next है हमारे पास the next question is categorize the following as syntax error, logical error and runtime error. So before we answer the question, who will explain ये error कौन से होते हैं हमारे पास, syntax error, logical error and runtime error. So Shriya is ready with the answer. Yes, Shriya. So syntax error is defined as the error which occurs in the syntax of the program, that is some grammatical errors. Then logical error is the error which occurs in our logic. For example, if we want to add two numbers, by mistake we write minus instead of plus. So that will generate a logical error. And runtime error is an error that occurs during the runtime of the program. For example, when we divide any number by 0, it ends with infinity, which is not possible to answer. So that's why it acts as runtime error. Yes, very good explanation. तो syntax error है हमारे पास, the error is that is coming up कि हमने जो statement है उसको properly जो उसका syntax है उसको follow नहीं किया, and we have made some mistakes in the syntax error. And syntax error are the simplest to solve, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है वो हमें सिस्टम पाइथन से पता चल जाएगी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है हमारे पास लॉजिकल एरर, लाइक शी हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ, जैसे हम प्लस करना चाह रहे हैं तो हमने माइनस डाल दिया है, या हम लेट से 5 नंबर की एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने उसका कहीं पे हमने उसका लॉजिक गलत तरह से इंप्लीमेंट कर दिया है। अब सिस्टम को थोड़ी पता है कि एवरेज के लिए हम हमारे लॉजिक में कहाँ पे प्रॉब्लम है, सो दैट विल यील्ड द लॉजिकल एरर. And last is the runtime error, like here is the division by 0 is the fall under the category of this runtime error. So ये जो first error है that is 25 by 10 by 0, so this will fall under the category of this runtime error. And this next is 25 and equal to 0, and again the third statement is syntactically this is correct. So syntactically you see here I have implemented for your clarity. ठीक है, तो सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेमीकोलन के बाद हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेमीकोलन ऑपरेटर. ठीक है जी, बट इसमें फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, दैट इज डिवीजन बाय 0, बिकॉज num1 की वैल्यू है 25, num2 की वैल्यू है 0, so again we will have a division by 0 error, and this is not a syntax error, this is a runtime error. So both the errors are runtime error. So next we move to the 6th question. So किसी की टर्न नहीं आई अभी तक. Yes, Stephen, Mr. Stephen. दिलबाग सिंह. वो आंसर ही कर दो, कहाँ पे चले गए हो? हाँ तो करो, फिर आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़ो इसको क्या है इसमें. 6th क्वेश्चन.
So we will have to shift this question to yes, Manat Sharma. Yes, sir. Sixth question. सर रीड करना है पहले. हाँ हाँ पढ़ दो पहले, सभी के लिए पढ़ दो आप. Write a Python program to calculate the amount payable if money has lent on simple interest, principal or money lent equals to P, rate equals to R percentage per annum, and time equals to T years. Then simple interest SI equals to P into R into D divided by 100. Amount payable equals to principal plus SI. PRT are given as input to the program. मन थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें? यस सर, हमें पहले जैसे इन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इनपुट कर लेंगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम. हाँ फिर हम सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट पेएबल कौन सा अमाउंट है? अमाउंट पेएबल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना एंड में. कंपाउंड कहाँ पे आ गया अभी? कंपाउंड तो इसमें वर्ड ही नहीं यूज किया. नहीं, पहले जैसे हम एसआई निकाल लेंगे, एसआई को मतलब पहले हम इनपुट कर लेंगे तीनों चीजें, फिर एसआई निकाल के मेरा क्वेश्चन है वो ठीक है, आपको आंसर क्लियर है. मेरा मतलब है ये इसमें एक अमाउंट पेएबल है, ये क्या चीज है? अमाउंट पेएबल क्या चीज? एक बार देखो फिर से रीड करो, अमाउंट पेएबल कहाँ पे आ रहा है? चलो ठीक है. मुस्कान, यस मुस्कान वांट्स टू आंसर. सर ये जो अमाउंट पेएबल है ये वो अमाउंट है जब हम इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट पे करेंगे प्रिंसिपल पर अमाउंट इंटरेस्ट करके. यस. और इसमें पीआरटी की वैल्यू हम कैसे इनपुट करेंगे? हाउ वी विल इनपुट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम? सर वी कैन यूज फ्लोट डाटा टाइप. हाँ ठीक है, डायनामिकली हमें वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी बिकॉज पीआरटी आर नॉट गिवन इन द प्रोग्राम. हम क्या करते हैं खुद ही, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं 10,000 और रेट मान लेते हैं अपने हिसाब से और टाइम अपने हिसाब से. सो वी हैव टू टेक दीज वैल्यूज इनपुट फ्रॉम द यूजर. भी थोड़े दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दैट हाउ वी हैव टू बेसिकली प्रोसीड विद. तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है, बताया है इसमें से दैट पीआरटी आर गिवन एज इनपुट. तो ये इनपुट करना है प्रोग्राम में हमें, ठीक है? डायनामिकली इनपुट करोगे, दैट विल लुक नाइस. So now we move to the next question, number 7. So let us say who will make a try on this. Yes, नीचे अभिनंदन 11B. अरे सारे पार्टिसिपेट किया करो, अदरवाइज थोड़े से स्टूडेंट्स के ऊपर ही प्रेशर रहता है. एंड अजय प्रताप के ऊपर भी बहुत ज्यादा फिर प्रेशर आ जाता है बिकॉज ही हैज टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस. बाकी ये देखो अजय प्रताप बाकी पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, नीचे एंट्री करके बैठे हैं, बट बस अभिनंदन है, तरुण जोत, दिलबाग सिंह, who is want to take the lead, रोमिका, नवदीप सिंह एंड स्टीफन. इन 6 में से कोई है कोई या लंच सेशन के लिए? मेरे को दे माइट हैव मूव टू द लंच सेशन a bit early. यस, गुरलीन आंसर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन. गुरलीन एक मिनट में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो सर. हाँ अच्छी तरह से पढ़ो, थोड़ा लाउडली पढ़ लो, बाकियों को भी पता चल जाएगा. Okay sir. Write a program to repeat the string good morning in n times. Here n is an integer entered by the user. तो सिंपली सर इसमें हम फॉर लूप यूज करेंगे. अरे लूप कहाँ पे आ गई यार, इतनी जल्दी लूप के भी ऊपर पहुंच गए हो आप. विदाउट लूप करना है ये. और पाइथन बेसिक में अभी लूप हमने पढ़ी नहीं है, बिना लूप के करना है ये. अच्छा तो एक मिनट सर. and I say write to repeat this thing and by the integer. हाँ सर फिर सिंपली हम बताओ क्या करेंगे. पहले हम इनपुट यूज करेंगे, इनपुट से हम n जितनी बार हमने रिपीट करना है तो वो इनपुट करके कॉपी पे लिखो, जल्दी जल्दी कोड लिखो सारे एंड आई विल चेक हु विल सेंड मी द फर्स्ट दिस कोड. क्वेश्चन नंबर 7 का कोड हु सेंड्स मी फर्स्ट. विदाउट लूप करना है, वी डोंट हैव टू यूज द लूप. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट ए प्रोग्राम जिसमें हमने गुड मॉर्निंग को रिपीट करना है n टाइम्स
and where n is to be entered by the user. And very fast. So we got the answer from yes. Amarveer has done. Amarveer is it's okay. It's fine. It's okay. क्वेश्चन इजी है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कंकैटिनेशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं और रेपिटेशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। यस गुरलीन हो गया। So I will show you the output how it has been done. ठीक है। सो एक तो पहले हमने नंबर इनपुट करवाना है यूजर से, दूसरा हमने स्ट्रिंग ले लेना है एंड लेट्स से वी हैव मल्टीप्लाइड दीज टू वैल्यूज n, जितनी बार हमें रेपिटेशन चाहिए और जिस स्ट्रिंग की रेपिटेशन चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, z में डाल दिया। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। एंड लाइक अगर हम एक वेरिएबल इसमें रिड्यूस करना चाहते हैं, सो वी कैन डू हियर दिस n into x here. So let's say 5 times. So you will find good morning 5 times here. So I hope everyone is clear with the question. So now we move to the next question is, yes, to write a program to find the average of 3 numbers. So very easy this question is. Yes Manoj Sharma. यस सर। हाँ कैसे होगा ये प्रोग्राम? सर पहले हम 3 नंबर इनपुट करा लेंगे, फिर हम फॉर्मूला लिख देंगे एवरेज का, मतलब साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 डिवाइड बाय साइड कहाँ पे आ गई? ये ट्रायंगल थोड़ी दिया है साइड, मतलब नंबर 3 नंबर्स डिवाइड बाय 2 सम करके फिर हम आप लिख देंगे प्रिंट द एवरेज। ठीक है गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन भी बेटा अभी पढ़ो, डोंट रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 9, Write a program that asks the user to enter one's name and age. Print out a message addressed to the user that tells the user the year in which he or she will turn 100 years old. तो ये क्या करवाना है हमने? वी हैव टू बेसिकली राइट ए प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू एंटर, उसका नेम और एज इनपुट करवा लेंगे, फिर हम बताएंगे इसको कि किस ईयर में वो जाके 100 ईयर ओल्ड हो जाएगा। सो अगेन द टास्क इज गिवन टू एवरीवन एंड श्रिया इज रेडी। श्रिया सेंड करो, कोड सेंड करो आप। ओके सर। फोटो खींच के भेज दो, ठीक है। बाकी भी ट्राई किया करो क्वेश्चन, एंड बेस्ट थिंग इज कि जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। सो a lot of responses are there. Dilbag has solved this average, it's okay. और जो भी कोड आप सेंड करोगे वो अभी 1 मिनट में यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके एंड वी विल फाइनलाइज दैट। Someone wants to read the question again. So this is the question number 9. So this is the last question of the day.
And I request Dilbag Singh, Romika, Tarunjot, Navdeep, Stephen, and Abhinandan, please increase your participation. Na? So try to participate in the class. So let's see, Amarveer वाले system को हम इसको start करते हैं. So Amarveer has sent the code and I will implement here. ठीक है जी, बाद में आप लोग suggest कर देना. बाकी काफी के message आ गए हैं, but I can implement one at a time. Name is equal to input the name. So enter name, and let's see, next is the age. Convert it into integer. Enter age. Next he has done year is equal to calculation की हुई है and integer में convert किया इसको 2021 minus the age, ठीक है, और प्लस उसमें 100 कर दिया. ठीक है, लॉजिक है. And last is just we will print the year. ठीक है जी, and let's try to run this one. So let's say the age is 35. Sorry, name आ गया था तो name ही रहने देते 35. So 35 will basically go up to this 2086 में हो जाएगा 100 years. So run this one on 42. That's in name. Clear? So 2079 you will turn the test. So logic is good. जितनी उसकी age है उसको minus कर लो and उतने साल हम पीछे चले जाएंगे और 100 उसमें ऐड कर दो. So you will reach the 100 level. So basically तो हमने logic के ऊपर focus करना है. That is clear. So someone can work with the different logic also. And I think the time is almost over. और कोई आप लोगों का कोई question है? Any question you have? And basically no, I am giving you the hint from where you can pick up the question and try to solve. And थोड़ी सी जैसे अजय प्रताप थोड़ी practice करो बेटा question की, थोड़ी programs की. ठीक है, जितना भी आप अपने schedule में से निकाल सकते हो time and try to practice this one. किसी की कोई query है so you can bring that. So thank you beta, thank you very much for participating in the class in a good manner. Thank you. Thank you, sir. Thank you.